Yes, sir. Okay, so now in this circuit, we have to determine what is the equivalent resistance that we have to find. So let us solve one by one example. Okay, so I will start with some small examples and then we will move further. Okay. Okay, don't worry about this. I'm going to give these notes to you. But just you keep the calculator with you and you have to tell me the calculations at every stage. Okay. So let this resistance is of 10 ohm. This resistance is of 5 ohm. Okay. This resistance is of 8 ohm. And let this resistance is of 15 ohm. Okay. Okay, can you tell me what is the first combinations that you can solve? पहले series में देखना है, series में तो है नहीं ये कुछ. So is there in parallel first combination? Are you able to see these two are in parallel? Correct? Yes, sir. Okay, so only one or two are replying. Okay, are you able to see this in parallel? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so Yes, sir. these 10 and 5 are in parallel. So this circuit I can further reduce as this first, sorry, The circuit I can be reduced as a single resistance parallel with 8 ohm resistance and then parallel with, sorry, in series with 8 ohm and then parallel with 5. So this is the 8 ohm as it is. This is the 15 ohm as it is. So you don't have to vanish this X and Y point because you have to determine the resistance between X and Y. X and Y ऐसे ही रहने चाहिए. Now this resistance is how much? According to the parallel circuit law, it is 10 into 5 divided by 10 plus 5. So how much it will give you? It is 50 by 15. So can I say it is 10 by 3? Correct? yes, sir. Okay, it's 10 by 3. Now, further I can reduce this circuit. Now, these two resistances, okay, you can observe these two resistances are in series. ये दो जो resistances कैसे series में है. So now we will convert that into the single resistance in parallel with 15 ohm resistance. So this is what 10 by 3 plus 8. So it will give you 34 by 3. Is it correct? मैंने orally किया है, check करके बताओ बराबर है. 8 3s are 24, 24 plus 10, 34 by 3. Correct है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we will move further. Then इसका एक single ही resistance आएगा. Okay, that is between X and Y. So for all rule क्या है? R1 R2 that is 34 by 3 into 15 divided by 34 by 3 plus 15. Okay, put this into the one bracket, put this into the one bracket and tell me the solution. Do it on the calculator fast and tell me the solution. How much you are getting? 6.44. 6.44. Yes, you got this 6.45. answer as 6.45 or 44. 6.45. Okay, 45 और 44 कुछ मिला होगा आंसर. करेक्ट है?
So Yes, sir. what you have used inside this? ये क्या यूज किया आपने, कौन सा? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस यूज किए, करेक्ट है? Yes, Is sir. it correct? Okay. So let's move towards the next example. Second example. Okay. Find RAB. Okay. So I have to find out what is the RAB. Okay. So let me draw the circuit. ओके, ऑल रेजिस्टेंसेस आर इन ओहम. सो मैं ओहम नहीं लिखता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऑल रेजिस्टेंसेस आर इन ओहम. ओके, ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 5, sorry, this one is the 10, and let here there is one more resistance is there which is of 15 ohm. Okay. First initially क्या दिख रहा है, series में है क्या कोई? Let this terminal is terminal A, this terminal is terminal B. पहले कोई series में दिख रहा है क्या यहाँ पे? Are you able to see any series? Inner loop से चालू करना है. So are you able to see any series? No, but you can see these two are in parallel, correct? These two are in parallel. Okay, 10 parallel with 10 कितना आता है? 10 into 10 divided by 10 plus 10. If you calculate it, it will give you 5 ohm. मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको कि when two equal resistances are connected in series, the equivalent is half. Correct है? Yes, sir. Okay, so this is just like a class lecture. So don't treat it as online, means you are not paying attention and just I'm मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है. Just a minute. Let me draw a clear circuit. So okay, outer resistance का value मैंने नहीं दिया है. Take this outer resistance as 10 10. So ये outer resistance 10 है, ये भी 10 है between A and B. Okay. So ये जो था ये 5 था, ये भी 5 था. ये कैलकुलेट हमने किया, 10 पैरेलल विद 10 5 आ गया, ये 10 पैरेलल विद 10 5 आ गया, ये 5 है, ये 5 है, और सेंटर में एक 15 है. ओके, अभी बताओ कि ये जो 5 ओम के रेजिस्टेंस है, ये कैसे है? Series. ओके, और ये Series. 5 के कैसे है? Series. सीरीज. ओके, Series. so I can reduce this circuit as, further I can reduce this circuit as just a minute. Okay, further I can reduce this circuit as, this is 10 ohm,
ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया, एक ही, ये बीच का एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया. I am using the digital pad, so may not be handwriting is good as in class. Okay, तो ये कितना हो गया? 5 + 5 + 5 15. 15. सेंटर वाला ऑलरेडी 15 दिया था, ये 15. अभी 15 15 15 कैसे है? ये 15 15 Parallel. 15 कैसे? पैरेलल. Parallel. So these are in the parallel, so you can reduce it to the single resistance. Okay, so this is a 10 ohm, this is the 10 ohm. So 15 parallel with 15 parallel with 15. How will you calculate the equivalent? Actually, it should be calculated like this: 15 into 15 into 15 divided by 15 into 15 plus 15 into 15 plus 15 into 15. R1, R2, R3 divided by R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R4. बट ये तीनों इक्वल है, इसलिए तीनों इक्वल जब हो गए तो सिंपली आपका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 3 आएगा. दैट इज इट विल गिव यू 15 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 5 ओम. इसका वैल्यू कितना आएगा? 5. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन A and B? What is the 25. resistance between 25 ohm. 25. 25 ohm. Okay, got the idea how to solve the circuit problem? Yes, sir. To Yes, find sir. the equivalent, huh? Yes, sir. Okay, Yes, but now I'm going to give you the another problem into this category, which we have to solve. Okay, see, I have to find out the third problem. I have to find out Rxy. What is the value of Rxy? That is resistance between X and Y point. Okay, and the circuit is like this. Okay, let this resistance is of 5 ohm, this resistance is of 10 ohm, this resistance is of 5 ohm, this resistance is of 5 ohm, this is 5 ohm, this is 10 ohm, this is 10 ohm. How you will solve this problem? यहाँ पे series parallel, Whetstone bridge. Wheatstone bridge. ये series parallel है क्या? यहाँ पे है क्या series parallel? देखो पैरेलल में क्या होता है, देखो इमेजिन करके देखो कि करंट यहां तक आ गया, यहां से करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये सेम करंट यहाँ पे आया, ये सेम करंट यहाँ पे आया. ओके, देखो ये करंट यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे फिर से उसको दो पाथ मिल गए. ये इधर इस पाथ में ये दोनों करंट ये इधर आके फिर ये इकट्ठा होकर इधर जाएंगे. सो देयर इज नो सीरीज पैरेलल. अगर पैरेलल में होता है तो कैसे आता है करंट? हमेशा पैरेलल में एक साइड से निकल के करंट दूसरे साइड से निकल के करंट फिर से इकट्ठा हो जाता है. यहाँ पे कहीं पे भी इकट्ठा नहीं हो रहा है, देखो यहाँ से पार्शियली डिवाइड हो रहा है करंट. सो दिस इज नॉट इज अ सीरीज पैरेलल सर्किट. यहाँ पे कोई भी सीरीज पैरेलल सर्किट नहीं है. यहाँ पे सर्किट कैसे फॉर्म होता है मैं बताता हूँ. ओके, मैंने आज एक क्लास में बताया था, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है टॉम एंड जेरी जैसा कंसिडर करो. टॉम को जेरी ने ऊपर से कुछ के फेंक के मारा है. सो दिस विल कन्वर्ट इनटू डॉट. लाइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू डॉट, जैसे टॉम एंड जेरी के इसमें देखते हो कि डॉट में आ गया. नेक्स्ट ये आ गया यहाँ पे, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है आपका, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये दूसरे 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है. सो और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है. ओके, अगर आप देखोगे इस सर्किट में तो इस सर्किट में ना सीरीज ना पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है. यहाँ पे एक जो ट्रायंगल जैसा शेप दिख रहा है. सो ट्रायंगल इज नोन एज अ डेल्टा. ओके, यहाँ पे क्या है? ये डेल्टा.
ओके डेल्टा। और यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे देखो, एक ब्रांच इधर जा रही है, एक ब्रांच इधर जा रही है, एक ब्रांच इधर जा रही है। इट इज कॉल्ड एज स्टार पॉइंट। Okay, so without delta to star conversion or star to delta conversion, we cannot solve this problem. Got it? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. without solving star and delta, we cannot do this. So how we can solve using the star delta? So I have a small derivation regarding to that. Okay. So are you able to see this screen? Yes. दिख रहा है? Yes. Yes. Yes, Yes. Okay. Just a minute. I will make a full screen. Okay. Got it? See, here you will observe that this is the one. मेरा hand tool दिख रहा है यहाँ पे? Hand tool दिख रहा है? Yes, sir. yes, sir. Okay. Let me open the annotation. Okay, यहाँ पे. So you will observe that there is a 1 point. Okay. Here you will observe that there is a second point. Here it is observed that the third point. So this is the first point, second point, third point of the triangle, that is a delta, and each triangle, each side have a one resistance. So I will call the resistance between these two terminal as R12. तो ये 1 और 2 के बीच में, इसलिए R12. ये रेजिस्टेंस को मैं बोलता हूँ R23 और ये रेजिस्टेंस को बोलता हूँ मैं R31. ये नॉमेनक्लेचर समझ में आया? ये नॉमेनक्लेचर Yes, समझ sir. में आया क्या? Yes, sir. Okay. Yes, sir. यहाँ पे 3 नोड है. Now I want to find out its equivalent star. I want to find out its equivalent star. मतलब ये जो डेल्टा है इसका मुझे इक्विवेलेंट स्टार ऐसे निकालना है. 1 2 3 पॉइंट वैनिश नहीं होने चाहिए, लेकिन इसके बीच में ये स्टार्ट और दैट स्टार्ट पॉइंट आई विल कॉल. Okay, the start point I can give the any name. Okay, so I will give the O name. Okay, O name. So this resistance now, it resistance is R1. This resistance is R2. This resistance is R3. Okay. So you will observe here, this resistance is R1. This resistance is R2. This resistance is R3. Means I'm converting the given delta into star. I'm converting the given delta into star. Got it? Okay. Dev, you have raised your hand. Can you ask your question? Dev? Sorry, sir, but internet connection is low. Okay, okay. So okay, so let me erase this, whatever I have written. Okay, so you will observe that this delta is converted into star. तो अभी मुझे क्या करना है? I know these values. Which values I know? Okay, so I know this value. I know this value. I know this value. I know this value. From this, I have to calculate R1, R2, R3. Okay. Now let us consider that I want to calculate resistance between 1 and 2. Okay. इस दो टर्मिनल में रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ? इस दो टर्मिनल में रेजिस्टेंस कितना आएगा? ये कितना है? R1 है और ये कितना है? R2. ये तो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग तो आएगा ही नहीं. सो R1 और R2 कैसे आ रहे हैं? ये R1 और R2 कैसे आ रहे हैं? सीरीज में आ रहे हैं क्या ये दोनों? करेक्ट? मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये R1 और R2 सीरीज में आ रहे हैं. Yes. R3 Yes, को sir. छोड़ दो क्योंकि R3 उसमें टर्मिनल में नहीं आ रहा है. सो 1 और 2 में R1 R2 सीरीज, इसलिए इसको यहाँ पे मैंने लिखा R1 एंड R2. सिमिलरली इस दो पॉइंट में इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो R31 और R23 ये दोनों कैसे है? ये दोनों सीरीज में है क्या? Yes. Yes, sir. Okay, R31 और R23 is in series. So R23 and R31 in series और R12 उसके साथ कैसे है? Parallel में. So this circuit will look like this.
सर बट वो R1 और R2 सीरीज में कैसे है? कौन से ये वाले नहीं, बोल रहे हो? R12 और R31 आपने बोला सीरीज में है, हाँ देख लो बट ना, फिर देख लो इसका इक्विवेलेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट 1 2 में कौन सा रेजिस्टेंस है? ये R12 है, बराबर। ओके, यस सर, पॉइंट 1 2 में रेजिस्टेंस कौन सा है? ये कौन सा है? R31 है। और ये कौन सा है? R23। और यहाँ पे पॉइंट नंबर क्या है? 3 है। पॉइंट नंबर 3 कनेक्ट किया है क्या मैंने क्या बोला है? 1 2 के बीच का रेजिस्टेंस बोला है, करेक्ट है? यस सर, नाउ यू गॉट इट? यस बराबर है ये। मतलब इसके लिए का जो सर्किट बनेगा वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं बिटवीन 1 and 2। द फर्स्ट इज, दिस इज व्हाट, R12, दिस इज R31, R23। और इसी का इक्विवेलेंट जो स्टार आया उसमें R1 और R2 बिटवीन 1 और 2, ये आया R1 प्लस R2। गॉट इट? ये बिटवीन पॉइंट 1 and 2 मैंने किया है, बराबर है? यस Okay, now what is the equivalent of this? Equivalent of this is R12 into R31 plus R23 because they are in series, divided by R12 plus R31 plus R23, which is indicated here. Correct है solution? Correct है क्या? यस सर, Okay, now I will erase this one. इसका clear all drawings. Okay, now I want, see, now I want between 2 and 3. मुझे बता सकते हो क्या 2 and 3 में कैसे आएगा? ये 2 और 3 में आना है। सो 2 और 3 का सर्किट कैसे बनेगा? 2 और 3 में कैसे बनेगा? ये क्या आएगा पहला? 2 और 3 में क्या आएगा? ये R23 R23। ओके, R23। नेक्स्ट, ये क्या है? R12 और R31 दोनों कैसे आएंगे? R31 सीरीज में आएंगे, बराबर। R12 यस एंड R23। और इसका इक्विवेलेंट 2 3 में इधर क्या आएगा? 2 3 में क्या आएगा इक्विवेलेंट? R2 एंड R3 इज इन सीरीज, करेक्ट? ये R2 और ये R3, सॉरी, ये 2 नंबर टर्मिनल, ये 3 नंबर टर्मिनल, ये R2 और R3, इसका इक्विवेलेंट स्टार में, दैट इज R2 प्लस R3 इज इक्वल टू, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन R23 R12 प्लस R31 R12 R23 R31। ओके, लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन, क्लियर ऑल ड्राइंग। Okay. Similarly, if I calculate between 1 and 3, okay, अभी 1 and 3 में कैलकुलेट करता हूं मैं, यहाँ पे 1 और 3 में, तो R1 R3 आएगा, और यहाँ पे R31 इज इन पैरेलल विथ R12 प्लस R23, करेक्ट है? जैसे 1 2 निकाला वैसे 2 3 निकाला, वैसे 1 3 निकाला, करेक्ट है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ क्या करता हूं मैं, इक्वेशन जो है, पहले इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन या कौन से भी दो इक्वेशन एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं। एक दूसरे में से अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किए, R3 प्लस R1 माइनस R2 प्लस R3, ये जो इक्वेशन मिले ना, ये R2 प्लस R3 वाला इक्वेशन और R3 प्लस R1 वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन में से मैंने ये इक्वेशन माइनस कर दिया। तो ये माइनस करोगे और मैनिपुलेशन करते जाओगे तो यू विल फाइंड दैट R1 माइनस R2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे R1 माइनस R2 की वैल्यू आई, R1 माइनस R2 आ गया। R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 को एक दूसरे के साथ ऐड करो तो यू विल गेट दिस वैल्यू। एंड इफ यू सॉल्व दिस यू विल ऑब्जर्व दैट, ओके, यू विल ऑब्जर्व दैट जब मैं R1 निकाल रहा हूं, दैट मीन्स if I am calculating this resistance R1, यहां तक का रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, ये R1 which is here, which is indicated here, तो R1 का वैल्यू आता है ये
multiplied by A divided by sum of all resistances in delta. So R1 का formula क्या आएगा? See, this resistance is how much? R12. This resistance is R31 divided by sum of the resistances in delta. Delta में resistance है R12 plus R23 plus R31. Got it? Okay. Can you tell me what will be the value of R2? R2 क्या आएगा? R2 बीच का है ना, उसके दो टंगड़ी पकड़ के चलो. ओके, उसके दोनों लेग्स पकड़ो. टंगड़ी मतलब लेग्स पकड़ो. सो R2 के दोनों लेग्स क्या है? R12 और R23. R12 और R23. सो R2 is equal to R12 R23 divided by sum of all resistances in delta. डेल्टा में जितने रेजिस्टेंस थे वो इसका समेशन करना है. ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ R3 नाउ? Anyone? Are you able to listen me? Yes, sir. Okay, can you tell me what is R3 now? Anyone? ये R3 निकालना है, तो इन दोनों लेग का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? R23 into R31 R23 into R23 into R31 डिवाइडेड बाय R12 R12 plus R23 plus R31. समझ में आ गया? yes. ओके, ऐसे समझ में नहीं आएगा. अभी हम एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो लेट्स कम वंस अगेन टू माय नोटपैड. Okay, let me clear all drawings. Okay. See, ये वाला प्रॉब्लम अभी हमने लिखा था. ये वाला प्रॉब्लम दिख रहा है सामने. Yes, sure. ओके, देखो यहाँ पे डेल्टा फॉर्म हुआ था कि नहीं? यहाँ पे डेल्टा फॉर्म हुआ है कि नहीं? ये डेल्टा है ना? 5, 5 और 10 का एक डेल्टा है कि नहीं है? ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट डेल्टा ऐसे आना चाहिए. डेल्टा ऐसे भी आ सकता है. ये है क्या डेल्टा? ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये 5 ओम है क्या डेल्टा? Yes, ओके, sir. तो अभी मैं क्या कर सकता हूं? इसके बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल सकता हूं. तो इसका इक्विवेलेंट ऐसा बनेगा, ये 10 ओम का बाहर वाला रेजिस्टेंस, ये पॉइंट यहाँ पे, इसको पॉइंट ए एज्यूम करता हूं, इसको पॉइंट बी एज्यूम करता हूं, इसको पॉइंट सी. सो सी पॉइंट ए और ये ओ पॉइंट है. सपोज पॉइंट ए और ओ में एक रेजिस्टेंस होगा, पॉइंट ओ और बी में एक रेजिस्टेंस होगा और पॉइंट बी ओ और सी में एक रेजिस्टेंस होगा. सर, हाँ, वो बीच वाले में से करंट फ्लो हो गई नहीं ना? किसमें से? वो बीच वाला जो 10 है उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा ना? बी से? जो बीच वाला 10 ओहम का रेजिस्टेंस है उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा ना? अरे वो अभी मैंने यहाँ पे सोर्स कनेक्ट किया है कि कुछ? मैंने नहीं. सोर्स कनेक्ट किया है क्या? नहीं, बराबर है ना? I have not connected any source. I want to calculate equivalent resistance between 2 points. ये प्रॉब्लम अलग है, ये वोल्टेज करंट वाला प्रॉब्लम नहीं है. Got it? यस सर. ओके, अभी देखो ये पॉइंट बी तक आ गए, मतलब ये जो डेल्टा था, इस डेल्टा का मैंने स्टार में कन्वर्ट कर दिया. ओके, फिर ये पॉइंट बी से एक 5 ओम का रेजिस्टेंस फिर से है और ये दूसरा 5 ओम का रेजिस्टेंस भी जो नोन है ऑलरेडी. ये 5 ओम का, ये 5 ओम का, ये 10 ओम का. नाउ I want to calculate this resistance and this resistance. Okay, ये तीनों रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं. तो मुझे बताओ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे आए, कितना आएगा? यहाँ पे निकाल के बताओ. ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है. तो इसके दोनों लेग क्या है? इस लेग में कितना रेजिस्टेंस है? 5. इस लेग में कितना रेजिस्टेंस है? 5. सो कैन आई से इट इज 5 into 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा में कितने रेजिस्टेंस है? 5 plus 10 plus 5. 5 plus 10 plus 5 कितना आ गया बताओ? ये 1.25. कितना आ गया? 25 divided by 20, that is 1.25. करेक्ट है?
Yes, sir. Yes or no? Okay. So can you Yes, tell sir. me? Okay. Can you tell me this value? मैं अलग कलर से निकालता हूँ. ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है. O to C ये वैल्यू निकालना है. कैसे निकालोगे? O to C 5 into 10 divided by 20. 5 into 10 divided by 5 plus 10 plus 5 कितना आ गया ये? 2.5. 2.5 ohm. 2.5. 2.5. 2.5. फिर ये बताओ ये कितना आएगा यहाँ पे? 2.5. ओके यहाँ पे 2.5. मतलब ये वाला 5 into 10 divided by sum of delta 5 into 10 divided by 5 plus 10 plus 5. So this will give you again 2.5. So see, this resistance will come 2.5. as a 2.5. This resistance will come as 2.5. This resistance will come as a 1.25. अभी बताओ मुझे ये जो 2.5 है और ये 5 है कैसे है? सीरीज में है क्या ये? Series. और ये दोनों कैसे है? Series. Series. और ये दोनों कैसे है? Series. Okay, so can I draw this diagram simply like this? Okay, थोड़ा सा प्रॉब्लम समझने में अगर आपको डिफिकल्टी जा रहे हो, so let me draw a bigger size. I will repeat this problem once again. ओके थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ प्रॉब्लम को. इनको मुझे पता है बहुत लोगों को पहली बार समझेगा ही नहीं ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. ये पहला 10 ओम का रेजिस्टेंस था सर्किट में, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस था. थोड़ा सा बिगर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. ये 5 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस था. ओके यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस था, और ये दोनों मिला के यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस था. तो नाउ अगर आपको पहले समझ में नहीं आ रहा हो तो टर्मिनल के नाम दे दो. ओके सपोज ये एक्स और वाई पॉइंट था हमारा, और इसको मैं एज्यूम करता हूँ पॉइंट ए, नोड बी, नोड सी और नोड डी. मुझे अभी एबीसी का ट्रायंगल दिख रहा है, वेदर एबीसी इज इन डेल्टा, बराबर है. तो उस डेल्टा को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ स्टार में. आई कैन कन्वर्ट दिस डेल्टा इनटू स्टार. तो मेरा इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बन जाएगा? द इक्विवेलेंट डायग्राम 10 ohm as it is between x and a. 10 ohm is as it is. मैं इस पॉइंट को O नाम देता हूँ. A और O के बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा स्टार का. O और B के बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा स्टार का. O और C के बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा स्टार का. एंड देन later on this is 5 ohm between B and D as it is, between C and D as it is. Or this one is of 10 ohm. This one is of 10 ohm. Okay, now I want to calculate. Let me check मेरा पेन कहाँ गया. जस्ट मिनट. मेरा डिजिटल पेन में कुछ तो प्रॉब्लम आ गया. एक मिनट मैं उसका नीब चेंज करता हूँ.
जस्ट अ मिनट, मेरा सिस्टम कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, वेट अ मिनट। ओके, नाउ इट्स ओके। सो सी हियर, ये जो ये हैंग हो गया है शायद नोटपैड ही। ओके, शायद नोटपैड ही हैंग हो गया है। ओके, सी सेम प्रॉब्लम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर ये एक्स पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये ओ पॉइंट था। ओ टू बी एक रेजिस्टेंस है, बी टू डी एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और ये एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ये 5 5 10 ये नोन है, ये भी 10 वाला नोन है। लेकिन मुझे ये कैलकुलेट करना था। ये कैलकुलेट करने के लिए हमने उसके दोनों लेग्स, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ये वाला, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और तीनों का सम लेना है। ओके, सो 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 प्लस 5, सो दिस रेजिस्टेंस विल गिव 2.5। ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो ये वाला 5 ओम, ये वाला 5 ओम, दैट इज 10 ओम। सो 5 इंटू 10, ये 5 ओम था और ये 10 ओम था। 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय 20, सो इट विल गिव यू 2.5। सिमिलरली ये भी कैलकुलेट करोगे तो ये भी आएगा 2.5। सो नाउ योर सर्किट विल बी लुक लाइक दिस। ओके, फिर ये 2.5 और ये 10 ये दोनों सीरीज में है, ये बन जाएगा 12.5 बिटवीन ए एंड ओ, सॉरी बिटवीन एक्स एंड ओ। ओके, फिर बी और डी ये क्या 2.5 और 5 सीरीज में है। ओके, 2.5 और 5 सीरीज में है, दैट विल गिव यू 7.5, और यहां से भी जो आएगा वो होगा 7.5, और लास्ट में इधर जो होगा वो 10 ओम होगा। तो सर 7 प्लीज पॉइंट, रिपीट हाँ 2.5 वाला, वो जो 2.5 वाला है वो एक और बार रिपीट करो प्लीज। कौन सा, ये वाला, ये हाँ वाला। हाँ, यस सी इसके इस लेग में कौन सा रेजिस्टेंस है, इस डायग्राम में देखो समझ में आएगा। एक मिनट है, मेरा वो हैंग हो गया इसलिए देखो, इस डायग्राम में ये 10 ओम है और ये 5 ओम है ना। यस सर। ओके, ये वाला निकालना है रेजिस्टेंस आपको, ये निकालना है रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ डेल्टा कितना आएगा, 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 10 इंटू 5 50, 50 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है ना। यस सर। ओके, गॉट इट। यस सर। ओके, सो ये व्हाइट बोर्ड पे फिर से आ गए। 7.5 पैरेलल विथ 7.5, तो ये 12.5, 7.5 और 7.5 का पैरेलल होगा 7.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 3.75 आएगा ये, और ये कितना है 10 ओम का। सो अभी बताओ व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में कितना रेजिस्टेंस रह गया, तीनों सीरीज में है ना, कितना आ गया, हाउ मच इज द रेजिस्टेंस, 26.25। कितना, 17.25 sir. 20, how much, 12.5 plus 3.75 plus 10, Sir, near it there will be 1.25. कितना,
26.25. 26.25 सॉरी ये रेजिस्टेंस 2.5 नहीं आ रहा है ना 1.25 ये 1.25 आपने मुझे बताया ना ये करेक्शन करके सो ये रेजिस्टेंस 11.25 सॉरी ये रेजिस्टेंस 11.25 बताओ अभी 25. 25.25. टोटल कैलकुलेशन इज हाउ मच 25.25 समझ में आया ये Yes, sir. okay so let us do one more problem then we will get idea ओके अभी बताओ इस प्रॉब्लम में फिर से डेल्टा आ रहा है नजर ओके एक तो डेल्टा ये इस लाइन को पॉइंट बनाने के बाद इधर भी डेल्टा हो सकता है या इधर भी डेल्टा कोई भी एक डेल्टा सॉल्व करो तो ये देखो ये डेल्टा अगर मैंने सॉल्व किया तो इसका इक्विवेलेंट स्टार मैं यहाँ से डॉटेड में निकाल रहा हूँ ये ऐसा आएगा मतलब माय सर्किट विल बिकम ओके माय सर्किट विल बिकम लाइक दिस ये पहला पॉइंट आ गया ये ऐसा पॉइंट आ गया ये ऐसा पॉइंट इनर ये डेल्टा का स्टार में कन्वर्जन हो गया तो ये तीनों रेजिस्टर्स फिर नहीं आने चाहिए बाद में ये तीनों रेजिस्टर्स वैनिश हो जाएंगे इसलिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूं दैट दे विल बी गेट वैनिश फिर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है फिर ये नीचे वाला 10 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो मुझे ये वाला वैल्यू बताओ कितना आएगा हाउ मच इज दिस वैल्यू इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे इसके दोनों लेग इस स्टार के दोनों लेग क्या है 10 into 3 divided by sum of delta that is 10 plus 5 plus 3 कितना आ रहा है ये बताओ 1.66 1.667 666 ओके करेक्ट है चेक करो Yes, sir. ओके ये वाला Yes, कितना आएगा बताओ ये रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ ये वाला रेजिस्टेंस कितना आएगा ये वाला निकालना है देखो ये ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया ये वाला निकालना है तो इसका एक लेग कितना है 3 दूसरा लेग कितना है 5 तो कितना हो गया 3 into 5 divided by 10 plus 5 plus 3 all resistance 0.833. 0.83. ओके ये वाला बताओ कितना आएगा मतलब ये वाला निकालना है अभी ये वाला मैं दूसरे कलर से निकालता हूँ ये वाला कितना आएगा ये वाला बताओ 2.78 ओके 10 into 5 ये वाला कितना आएगा 10 into 5 divided by 2.78. plus 5 plus 3 कितना 2.778 78. होगा या 2.77. 778 गॉट इट Yes. अभी बताओ ये दोनों कैसे है ये दोनों कैसे है series ये दोनों कैसे है Series. series so can I redraw this diagram as 1.667 ये ऊपर वाला एक सीरीज ये नीचे वाला एक सीरीज और ये बाहर वाला मतलब ये 10 एज इट इज यहाँ पे आया इसका और इसका समेशन कितना आया बताओ 2.778 प्लस 10 दैट इज 12.778 और यहाँ पे 8.833 प्लस 10 दैट इज 10.833 और ये कितना है 10 ये दोनों कैसे है अभी these two are in parallel correct okay so फिर equivalent क्या आएगा 1.667 10 okay
दोनों का एक ही रेजिस्टेंस आएगा अभी। ये 10 ओहम बिटवीन ए एंड बी, ये कितना है बताओ? 10.833 मल्टीप्लाइड बाय 12.778 divided 5.86. by 10.833 plus 12.778, 5.862. 5.86. 5.86। तो ये प्लस ये एक ही रेजिस्टेंस बनेगा। बताओ तीनों का एडिशन। सारा इमेजिनेशन पे खेल है, आप सर्किट इमेजिन कैसे? 17.5. हाँ 17.52. 17.52 ओहम इज द इक्विवेलेंट। गॉट इट? ये प्रॉब्लम में समझ में आया अभी का? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is about what? How to convert delta into star. Delta into star. वैसे similar formula है, जैसे हमने डेल्टा इंटू स्टार किया वैसे सिमिलर फॉर्मूला है स्टार इंटू डेल्टा कन्वर्जन का। स्टार इंटू डेल्टा कन्वर्जन, सो इक्विवेलेंट स्टार मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डेल्टा। सो मुझे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का फॉर्मूला पता है जो मैंने अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में किया। ओके, प्रीवियस प्रॉब्लम में जैसे मैंने किया था, तो ये यहाँ पे R1 R2 R3, इसका इक्विवेलेंट मुझे अभी R12 R23 और R31 निकालना है। ओके, सो R12 ये फॉर्मूला मुझे नोन है, हमने अभी डिराइव किया था ये फॉर्मूला। R2 का भी फॉर्मूला नोन है, R3 का भी फॉर्मूला नोन है। नाउ व्हाट वी विल डू, आई विल डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू। प्रीवियस क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन करके निकाला था, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो R1 मल्टीप्लाइड विथ R2 विल गिव यू R1 R2, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? R12 R31 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ये देखो, ये R12 डबल है, इसलिए इसके R12 स्क्वायर हो जाएगा, और R23 और R31 सिंगल टाइम है, इसलिए सिंगल सिंगल टाइम लिखा, और डिनोमिनेटर तो डबल है, इसलिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जैसे ही R12 निकाला वैसे मैं R2 R3 निकाल सकता हूँ। R2 R3 ये दो इक्वेशन, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके मैं निकाल सकता हूँ। देन नेक्स्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ। सो आई विल गेट R1 R2, आई विल गेट R2 R3, ओके, आई विल गेट R2 R3, और ऐसे तीनों कैलकुलेशंस करने के बाद मैं सबका एडिशन करता हूं, दैट इज R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R4। ये सारा एडिशन किया तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और यहाँ पे न्यूमरेटर में आप ऑब्जर्व करोगे R12 R23 और R31 कॉमन निकल सकता है। सो ये R12 R23 R31 एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल ऑब्जर्व दैट यहाँ पे R1 इसका वैल्यू जो आएगा R12 प्लस R23 प्लस R31। अभी इस सारे इक्वेशंस को मैं R1 से डिवाइड करता हूं। अगर मैंने इसको R1 से डिवाइड किया, मतलब पहले वाले इक्वेशन से डिवाइड करना है। ओके, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन कौन सा था जो हमने लिखा था? ये वाला। ये R1 से सारे इसको डिवाइड किया। ओके, R1 से सारे इसको डिवाइड किया, तो ऑब्वियसली R1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो R12 प्लस R23 प्लस R31, सो यू विल गेट लाइक दिस R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय अपॉन R1। इसका मतलब क्या है ये मैं और अच्छी तरीके से आपको बताता हूं। ये डेरिवेशंस के लिए तो आसान है, पढ़ के आप डेरिवेशन कर सकते हो, बट डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में कैसे आता है मैं दिखाता हूं। ओके, सपोज आई वांट टू डिटरमाइन, आ गया एनोटेशन। ओके, हाँ, आई वांट टू डिटरमाइन दिस वन,
ये पता है मुझे R1 R2 R3 पता है, इसमें से R12 निकालना है। तो R12 निकालने का फॉर्मूला देखो, ये R12 किसके बीच में आने वाला है, इसके बीच में आने वाला है। जिसके बीच में आने वाला है सो सारे रेजिस्टेंसेस का ऐसा मल्टीप्लीकेशन करो, R1 R2 प्लस R2 R3 R2 R3 प्लस R3 R1, जैसे पैरेलल में करते थे हम, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। और ये रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, R3 है। अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, R3। R3 को डिनोमिनेटर में ले लो। Okay, now can you tell me how to determine? Okay, so I will erase this part. Okay, I want to determine this R2. अभी R2 determine करना है, sorry R2 नहीं, R23 determine करना है। So R23 determine करना है मतलब ये value determine करनी है। Can you tell me what is the value of R23? न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, R1. यस करेक्ट। इसका अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है, R1। ओके, नाउ आई वांट टू डिटरमाइन R31। अभी आप बता सकते हो, R31 में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और इसके अपोजिट में क्या है, इसके अपोजिट में क्या है, कौन सा रेजिस्टेंस है, R2। अपोजिट वाला रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में लेना है, दैट विल कन्वर्ट योर स्टार इनटू डेल्टा, दैट विल कन्वर्ट योर स्टार इनटू डेल्टा। समझ में आया क्या ये, यस गॉट इट? Yes, sir. ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैंने यूट्यूब के वीडियोस में भी ये दिया हुआ है, सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। ओके, so now what I will do, we'll solve one simple numerical and then we will stop for today, and tomorrow session we will continue the star delta. Okay, again more numericals on the star delta. Okay, so let me come to okay, are you able to see this whiteboard? दिख रहा है? Yes, sir. Okay, now see, I have one delta, ये मेरे पास एक डेल्टा है। क्या होता है ना, डिजिटल पेन से जब निकालते हैं तो इतना स्ट्रेट डायग्राम नहीं आता है जैसे क्लास में आता है। ओके, so let this is 5 ohm, this is 10 ohm, this is 15 ohm. I will call this terminal as A, B, C, और इसके बीच में एक और स्टार है आपका, जिसका वैल्यू है 10 ओहम। थोड़ा सा और लेता हूं, इसका वैल्यू है 2 ओहम, इसका वैल्यू है 4 ओहम, इसका वैल्यू है 6 ओहम। एंड द टारगेट इज फाइंड RAB। मेरा एम है A और B के बीच का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, मतलब ये। तो ऑब्वियसली पहले जो इनर स्टार है उसको डेल्टा कन्वर्ट किए बिना आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। दैट इज आई वांट टू कन्वर्ट दिस फर्स्ट इनर स्टार इनटू डेल्टा, मतलब ये ऐसा आना चाहिए, ये इनर स्टार का डेल्टा। मतलब अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम में निकालता हूं तो A B C, पहले ये आउटर रेजिस्टेंस एज इट इज रहेंगे, okay, what are this outer resistance? Outer resistance is 5, 10, 15, और ये जो इनर स्टार है इसका मैंने डेल्टा कन्वर्जन किया, ओके। अभी मुझे बताओ कि हाउ आई कैलकुलेट दिस वैल्यू। ओके, मैं अलग कलर से लेता हूं, हाउ आई कैलकुलेट दिस वैल्यू। इसका कैलकुलेशन बताओ मुझे, क्या ये 15 है, इसका कैलकुलेशन बताओ मुझे क्या आएगा, इसका कैलकुलेशन मतलब ये वाला क्या आएगा,
पहले क्या करना है, स्टार का 2 into 6 प्लस 6 into 4 प्लस 2 into 6। ये अगर बार बार नहीं करना है तो एक बार ही इसका करके ले लो साइड में। ये बार बार नहीं करना है तो इसका एक बार ही कर लो साइड में। स्टार का सारा मल्टीप्लीकेशन 2 into 6 प्लस 6 into 4 प्लस 4 into 2, ये कितना आया बताओ मुझे? 44. 44. 44 आ रहा है। ओके, सो दिस कम्स टू 44। ओके, तो मुझे ये वाला रेजिस्टेंस बताओ कितना आएगा? ये वाला रेजिस्टेंस कितना आएगा? 44 डिवाइडेड बाय इसका अपोजिट कितना है, ये निकाल रहे हो ना आप, तो इसका अपोजिट कितना रेजिस्टेंस है? 4 ओम है। 44/4, ये कितना है? 11। करेक्ट है, बराबर है ये? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाउ यू विल कैलकुलेट, ओके मैं अलग कलर से लेता हूं, हाउ यू विल कैलकुलेट दिस वन? ये कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? ये कितना आएगा, मतलब ये वाला कितना आएगा? 22. 44 डिवाइडेड बाय अपोजिट इज 2, 22। करेक्ट है। और ये वाला कितना आएगा? 44 डिवाइडेड बाय 6, मतलब ये वाला 7.34. कितना? 7.4. 7.3. 7.3. 33 है क्या आगे? Yes, sir. 7.33. 7.33। ओके, अभी देखो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था। अभी मैं ये ए बी सी का जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल देता हूं। ओके, ए बी सी, ये पॉइंट एज इट इज है, ये पहला वाला रेजिस्टेंस एज इट इज है जो आउटर का था, ये वाला रेजिस्टेंस भी एज इट इज है, ये वाला रेजिस्टेंस भी एज इट इज है। मैं ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये वाली लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ये वाली लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ये वाली लाइन को दो पार्ट में। कैसे? ऐसे। इससे कुछ सर्किट का मीनिंग चेंज होगा क्या? सॉरी, see the outer one is 10, 5, 15 और ये इनर के कैलकुलेशंस आए थे 11, 22 और 7.33 और मुझे रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही व्हाइट बोर्ड स्मूथ जा रहा है कि यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। ओके, तो ये बताओ ये 7.33, ये 7.33 और 5 ओम कैसे है एक दूसरे के साथ? पैरेलल है। Parallel. ये दोनों कैसे है? पैरेलल है। ये दोनों कैसे है? पैरेलल है। तो ये एक ही डेल्टा बन जाएगा यहाँ पे। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा वो 10 into 22 पैरेलल विथ 10 + 22 इज 32। यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा 5 into 7.33 डिवाइडेड बाय 5 + 7.33। यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा 15 into 11 डिवाइडेड बाय 15 + 11। ये कैलकुलेट करो और देखो ए बी का निकालना है तो ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में आएंगे। ये दो रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज और उसके पैरेलल में ये, दैट विल बिकम योर इक्विवेलेंट। समझ में आया क्या ये प्रॉब्लम? थोड़ा सा टफ है समझने के लिए, पहली बार ऐसा प्रॉब्लम मैंने ऑनलाइन पे भी किया है, वो चेक करो।
Got it? Yes, sir. Okay. So I can see many students are answering in the chat box also. It's good sign. You are solving. Okay. It is not as comfortable as a classroom, but we have a time constraint. So at least we have given the justice to this topic. Got it? Yes, sir. Okay. So we'll solve another some star delta numerical in the next lecture also. Tomorrow's lecture. कल भी मैं lecture लूंगा एक. Okay. Sir, Hope you time? have enjoyed. समझ में आया क्या आज के प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, हाँ. कल का time? कल का Time. कल का टाइम यही सेम. Okay. Okay. 9:15 to 10:15. Okay. Because what is the problem? Yes, sir. This Zoom link is shared among 3 staff members. One more staff member is taking the CD division lectures, and that lectures is from 7:30 to 8:30. 7:30 to 9. So I have to start at the 9:15. I cannot start before that because this is the licensee copy of the Zoom, and we cannot start it simultaneously. That is the constraint with me. Okay. Okay, sir. Okay, chalo. Thank you. So should I end the lecture? Thank you, sir. Okay, so please give in the chat box that whether you like this session or not. Okay, so anything I want to improve. थोड़ा सा आज वो नोटपैड पता नहीं बाद में क्यों नहीं चला. नोटपैड पे अच्छा दिखता था. Next time I will do another one. Okay, chalo. Thank you. Oh, it's good. It's good comments. Okay. 5 star. Okay. Good, good. Give any suggestions to improve that. Okay, then it is good. Good night. Thank you, Sir, Omkar. अटेंडन्सचा नाही विषय का सर? अटेंडन्स डायरेक्टली रेकॉर्ड झाले बेटा माझ्याकडे झूम मध्ये. ओके. अटेंडन्स साठी करू नका, समजण्यासाठी करा. ओके. हो सर. ओके. Thank you. Bye bye. Good night. I'm ending the session now. Thank you. Good night, sir. Good night. Thank you, sir.